केयर गिवर जो है, जो सपोर्ट सिस्टम है पेशेंट का, जी। उनके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी और जो लोग आपके पास हेल्प सीख करने आते हैं उनके पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा उस पर थोड़ी सा रोशनी डालिए कि उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनके साथ कैसे डील किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो केयर गिवर्स के साथ, एंड बाय द वे एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाया है इसके लिए स्पेसिफिकली मैंने, एंड वो भी इसीलिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैं पर्सनली गुजर चुकी हूँ इससे। तो अगेन जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है वो ये है कि बिकॉज द पेशेंट इज गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर थिंग, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन पेशेंट पे ही रहता है। जो केयर गिवर जो उनके साथ साथ पूरा एक इमोशनली एंड फिजिकली ऑल्सो द पेन्स दैट द केयर गिवर इज गोइंग थ्रू, वो कभी मतलब पूरा का पूरा नजरअंदाज हो जाता है. नोबडी एक्चुअली केयर्स अबाउट व्हाट द केयर गिवर इज गोइंग थ्रू, वेयर एज द वर्ड इटसेल्फ states that all the care is given by the giver, and वो कहीं ना कहीं अंदर से पूरा खिंच जाता है, you know, with everything that is happening emotionally also, physically also. Therefore that caregiver needs to be nourished a lot more, because जब तक वहां से पॉजिटिविटी नहीं आएगी पेशेंट के पास पॉजिटिविटी नहीं जा सकती. So therefore a caregiver needs to be really really nourished and encouraged, and the support system for the caregiver, who himself is a support system for the patient, is very very paramount. तो कोशिश ये रहती है, there is something which we recognize in medical terms as the caregiver guilt. वो जो caregiver guilt है, अगर हम वो caregiver guilt को हम कम कर देते हैं तो caregiver burnout कम हो जाता है. There is also something which is called as a caregiver burnout. So we try and manage that. We try and implicate to the caregiver that आपका self worthiness और self love बहुत ज्यादा जरूरी है. तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने लिए टाइम निकालना है, आपको ना गिल्टी फील करते हुए अपने लिए टाइम निकालना है और अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है. अपनी लाइफ को खत्म नहीं करनी है विद द पेशेंट. You know, हम लोग as especially as women, this is more in women, we tend to stop living our own lives and start living the patient's life, because उसके अलावा हम कुछ भी करते हैं हम बहुत गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं कि मैं कैसे, सपोज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिले और मैं कहीं कुछ जाके सपोज एक फ्रेंड के साथ बैठना चाहूँ या एक मूवी देखना चाहूँ, तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि अरे वहां पे मेरा पेशेंट इस दर्द से गुजर रहा है और मैं यहाँ पे आके एक मूवी देखना चाहती हूँ. व्हाई इज दैट? बट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट हैज टू बी अंडरस्टूड, कि अगर आप अपने आप को एक स्विच ऑफ करके ऑन करके फाइन ट्यून नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. So therefore there is a complete program that is built. It's also kind of like the act of the joy of giving. Unless you yourself have joy in yourself, you won't be able to impart joy. Therefore that happiness to be cultivated in yourself is very very important, and therefore that program for the caregivers is well. Okay, we have a couple of questions. Somebody on the community wants to know, can you share the details of the caregiver programs? Maybe you can mention one or two that are available. Anyway, I would like to remind our viewers that if they would like Sophia's help, अगर वो जुड़ना चाहते हैं सोफिया जी से, तो हमें support@famhealth.in पे जरूर लिख सकते हैं, या हमारे कम्युनिटी पेज पे जाके सवाल छोड़ सकते हैं, that is famhealth.in/community पे, और हम जरूर आपको डॉक्टर सोफिया से जुड़ाएंगे. Dr. Sophia, if you can mention what are the programs for caregivers that they can subscribe to get some help when they are helping with their own cancer patient. Kinds of caregiver programs. Again, we help in emotional. Again, it's a holistic program. जहाँ पे हम caregivers को we try and give them the support that they require at that point in time. So जब किसी caregiver से हम बात करते हैं, and especially this is again a topic very close to my heart, because me myself having been a caregiver for the last 11 years, I've been through the journey, so I understand that a caregiver's requirements are plenty. एक पे सिर्फ एक emotional requirement पे वो खत्म नहीं होती है. There are different kinds of needs that a caregiver has to go through. So given उस टाइम पे उनकी क्या needs हैं that need to be addressed, and mostly and purely emotionally, motivationally to be able to propel them to, so that वो आगे वो जाने कि वो अकेले नहीं है इस लड़ाई के अंदर, and there are so many things they can do to improve the quality of their own life, personal life. आप कैसे improve कर सकते हैं, of course, ताकि आप अपने पेशेंट को एक तो
सपोर्ट भी ज्यादा कर पाए, आप उनका भी समझ पाए कि वो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पेशेंट इज गोइंग थ्रू, दैट्स व्हाट यू रिक्वायर। बट मोर इम्पोर्टेंटली आप अपने लिए वक्त निकाल के कैसे अपने आप को बर्नआउट से और फटीग से बचा सकते हैं, उस चीज के हमारे पास कई सारे प्रोग्राम्स हैं, so we give you certain tips and certain advice as to आप वो burnout fatigue कैसे, that caregiver guilt कैसे कम कर सकते। तो डॉक्टर सोफिया, जब आपके पास आते हैं पेशेंट्स, even while they may be undergoing a treatment for cancer or post the treatment when they come to you, आपके क्या basic requirements होते हैं? Do they must they accompany you with a caregiver? Is that kind of a mandatory underlying thing? And what about people who are a little skeptical because mainstay treatment is always something they tend to believe and trust a little more than following all the other tips. Right. So इसमें again there is no rule of thumb. कई तरह के पेशेंट्स हैं, कई बार फैमिलीज आती हैं मेरे पास जिसके अंदर की द पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट इज देयर प्लस द पेशेंट प्लस द स्पाउस, दे कम टू मी समटाइम्स. First, the caregiver will approach me, talk to me about it, and then I speak to the patient one-to-one. But wherever and whatever it is that we're talking about, of course, and this is again an unsaid rule of our profession, that there is always a confidentiality which is maintained. चाहे वो caregiver मेरे से बात कर रहा हो या patient उसी family का भी मेरे से बात कर रहा हो, कभी भी there is never an interspersing of the conversations that has happened. Therefore, कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों साथ में आएंगे, कभी अलग आ जाते हैं दोनों, कभी साथ में आ जाते हैं, कभी उनको मालूम होता है कि दोनों मेरे से बात कर रहे हैं, कभी उनको नहीं मालूम होता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट द पेशेंट वांट्स एंड हाउ दे वांट टू प्रोसीड इन दैट पर्टिकुलर थेरेपी. तो उसका कोई गिवन नहीं है. बट हाँ, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाती है अगर पहले एज अ फैमिली आते हैं तो डायनेमिक्स समझ में आ जाते हैं. ऑफ कोर्स देन इट्स ओनली द पेशेंट एंड आई हु आर टॉकिंग और द केयर गिवर एंड आई हु आर टॉकिंग, देन इट्स अ वन टू वन थेरेपी. कभी भी इट इज नॉट अ वेरी टोटल थेरेपी नहीं होता है, बिकॉज जो मेरी थेरेपी है वो एंटेल करती है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजों पे भी जाती हूँ, तभी मैं उनको इमोशनली हील कर सकती हूँ. तो देयरफॉर इट इज यूजुअली अ वेरी वन टू वन थेरेपी. लेटर ऑन इनिशियली सेशंस में एक दो जने हो सकते हैं. एंड एज टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज की आई फॉरगॉट व्हाट वाज. लोग ये जब वो मेन स्टे ट्रीटमेंट अपना रहे हैं, तब जब उनको in the middle of that, would they be comfortable with the idea of depending on nutrition and emotional needs? It requires a lot of courage, right? When you're undergoing a treatment, आप कैंसर के बीच में हैं, आप काफी सारी चीजों से जूझ रहे हैं, और कोई अगर आपको ये बोले कि नहीं, न्यूट्रिशन से फर्क पड़ेगा, इमोशनल अपना करोगे तो फर्क पड़ेगा, it takes a lot to accept that. It does, but more importantly क्या होता है विशाली जी कि जब इस दौर से कोई गुजर रहा होता है ना, तो ये नीड अपने आप ही अराइज करती है. एंड ये मैं इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि ये बहुत बार अराइज करती है, एक बार नहीं. अगर आप जैसे किसी चीज से गुजरते हैं तो इतने ज्यादा डीप इमोशंस होते हैं इस पूरे प्रोसेस के थ्रू, दैट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार काश कोई हेल्प कर दे, काश कोई सपोर्ट मिल जाए. एंड एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स इस जर्नी के थ्रू ऐसा फीलिंग आती है कि काश कोई मेरा हाथ पकड़ ले, काश कोई मेरे साथ हो जो ये समझ सके, यू नो, इफ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, आई होप समवन अंडरस्टैंड्स, आई होप समवन कैन एम्पैथाइज एज टू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. एंड बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड बिकॉज मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा बहुत बार होता है, तो इसलिए मुझे मालूम है कि इस चीज को हमें बहुत ज्यादा अंदर से निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. पेशेंट के अंदर भी, केयर गिवर के अंदर भी ये ऑटोमेटिक है जो आता है. बस यही है कि लोगों को मालूम नहीं है कि देयर आर people who are there willing to help. ऐसा सपोर्ट सिस्टम अब धीरे धीरे आने लग रहा है, ये मालूम नहीं है लोगों को. सो ये जरूर पहुंचाना है लोगों तक कि there are people who are willing to help you and hold your hand whenever the need arises, whenever you feel that there is a need. These things cannot be forced into patients because these are all supplementary treatments. We never like to interfere with whatever the doctor and the oncologist is already telling you to do. हम वो कभी नहीं करेंगे. And there are some things that we will sometimes recommend to the patient कि आप please अपने oncologist से पूछ लीजिए कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं, because obviously he knows your body type better. So while we will see all the reports, we will go through everything, there are some things that we will say कि आप please पहले डॉक्टर से पूछ लीजिए, because we don't want to interfere with the treatment. But otherwise, this is a need that is self-arising. आता ही आता है अंदर से.
एक्चुअली इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीड है, आप और आपके जैसे जो लोग कर रहे हैं ये, कि आप, आई थिंक हॉस्पिटल्स शुड बी इनकरेज टू डायरेक्टली आई put you एग्री। in touch with the patients and the families so that इसका जो इफेक्ट है और इसका जो ट्रीटमेंट है जो आपके साथ चलता है वो उसका ज़्यादा उनको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले. सो आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग बैक, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फिर से कि अगर आपके पास पेशेंट आते हैं, केयर गिवर आते हैं, तो इज देयर टिपिकली ड्यूरेशन की ये पूरा का पूरा उनके साथ में जब आप हैंड होल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लग सकता है एन एवरेज? ऑल्सो आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन ऑन द कम्युनिटी सेइंग दैट द केयर गिवर प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं वो कितना लंबे लास्ट करते हैं? टाइम बहुत मुश्किल है किसी का भी टाइम देना, क्योंकि कई लोगों के ट्रीटमेंट्स बहुत लंबे चलते हैं, कई लोगों के कम चलते हैं, कई लोगों को आफ्टर द ट्रीटमेंट इज ओवर ऑल्सो जरूरत पड़ती है, बिकॉज देन दे रियलाइज द गुड दैट द सपोर्ट सिस्टम इज डूइंग टू यू ऑफ अ काउंसलर, एंड देयरफॉर देन दे लाइक टू कंटिन्यू विद इट. कई लोग देन दे स्टार्ट बिकमिंग सेल्फ डिपेंडेंट. जो हम उनको एडवाइस देते हैं या जो हम उनको टेक्निक्स बताते हैं, when they become all right in adapting those techniques, then they're independent enough to say कि अब हम मैनेज कर लेंगे. तो कोई अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, नहीं बताया जा सकता. कई पेशेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी अपना संभल जाते हैं, दे से नाउ वी आर ओके टू मैनेज, या फिर अगर वो करेंगे भी दोबारा से एक सेशन करना चाहेंगे तो दैट विल हैपन मंथ्स आफ्टर. तो and which is absolutely all right because it is person to person. As a counselor, we're happy if a person is able to move on and be able to kind of gather that courage and strength and be able to fly again. हमारा रोल ही ये है कि वो कर पाए ऐसा. But having said that, we are there for as long as they want us to be. उसमें कहीं पे भी हमारी तरफ से हम नहीं चाहेंगे कि कोई चूक हो या आपको कभी ऐसा महसूस हो कि अरे आई वांटेड समबडी और वो नहीं था अवेलेबल. तो दोनों ही सिनारियोज हैं. तो एक टाइमलाइन देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये नहीं मालूम कि आप कौन से स्टेज पे हैं. in terms of emotion also, I'm not talking only in terms of the ailment. in terms of emotion नहीं मालूम होता कि आप कौन से स्टेज में हैं. कई लोगों के पास बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको की टॉक्सिसिटी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा होती है अंदर, वो निकालने में टाइम लग जाता है. और कई लोग बहुत सुलझ जाते हैं, जल्दी से उनका हो जाता है. तो अगेन जैसे कि एक मेंटल काउंसलिंग के साथ होता है, देयरफॉर इन दिस केस आल्सो द थेरेपीज डिफर. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें.